So talking about the leadership, we have with us our chief guest of the day, Ms. Mandeep Kaur Tangra ji, who I would like to invite here to talk more about the leadership. So talking about Mandeep Kaur Tangra ji, she's a philanthropist, entrepreneur, TEDx speaker, a motivational speaker, and a strategist. So she is a founder and CEO of a series of ventures, but mainly Simba Quads. Simba Quads is her venture which she started in a small village in Amritsar, that's Tangra, with the motive that people are students or basically the people are moving to the big cities, or they're afraid of going to the different cities in India. So which is and I'm so glad to be here today. It has been a continuous association with City University, and I love to work with people who are progressing and where we can see the progress. So I think CT is one institute which is emerging very fast in a much better way, and we all are together along with them. बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है because we always keep on watching them on social media. So when I was listening to all of you, what was coming in my mind, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इकोसिस्टम डेवलप करने में विश्वास रखते हैं, right? So associations with the schools hardly matters to a university in terms of bringing any students to them in long term कि इससे कोई admission हो जाएगी, because they had big budgets, and there are many other ways to bring students to the university for admission. But there are people who think to build an ecosystem around. It's very easy for me to start an IT company in Mohali or in Bangalore or in Hyderabad, and I had option to settle in US for 11 years, but it's my choice that I am working from my village, and I have built Punjab's first IT services company from a village where more than 130 people are working. So कई बार हम भेड़ चाल में नहीं जुड़ते, हम सोच से जुड़ जाते हैं, right? So I have to select out of lot of invites जब मुझे कोई बुलाता है, but my only connect with this institute is कि बहुत normal से शुरू करके they are rising, and we people are wings for them, और हमारा नाम उनमें आना चाहिए जिन्होंने विंग्स को स्ट्रेंथ दी है और आम बंदे ने भी कुछ करके दिखा दिया है, right? So this is called a holistic approach. This is called building an ecosystem, and good that out of hundreds of principals around, or maybe thousands in Punjab, right? We are the lucky ones connecting today, and we chose to come today and meet each other, right? So it's not only I am meeting you, it's 10 lakh people who are following me, they are meeting you today, right? So I personally feel that progress happens with gratefulness. अगर हमने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, कुछ करना चाहते हैं, तो वो शुक्राने से शुरू होता है. So I am not talking about the institute, the university, the principal, the schools, the admissions and the courses. I am only currently talking about personal thing, very personal for us. अगर हमने किसी को एनर्जी देनी है, we want to spread happiness, first we need that energy, right? लोग हमसे पूछें कि 24 घंटे तुम में कैसे एनर्जी रहती है, right? और अगर suppose there is a personal setback, right? किसी की जिंदगी में personal setbacks भी आ जाते हैं, और their mood is off because of various other reasons, right? But we have chosen our profession, right? There we have a different role.
CEO की सिरदर्द नहीं हो सकती, राइट? मनदीप की हो सकती है सिरदर्द, राइट? और अगर एक दिन ऐसा आ जाए कि जिस दिन हमें प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया हो, जैसे मुझे बुलाया था, है ना, तो उस दिन चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसे कनाडा की फ्लाइट पकड़ते हैं लोग, जाना ही जाना है, राइट? सो फर्स्ट वी नीड टू ब्रिंग दैट स्पिरिट इन अस कि आज मुझे जब मैंने ऑफिस में जाना है और वट एवर वर्क आई हैव टू डू, इट्स लाइक कि टुडे आई एम मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैज इनवाइटेड मी। उस दिन क्या मैं छुट्टी करती? उस दिन क्या मैं ये डिसीजन लेती जो मैं आज ले रही हूँ, राइट? सो इट इज, आई थिंक, सम ऑफ द थिंग्स यू कैन काउंट फॉर योर टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर फर्दर। उनसे आप सेम बात कर सकते हैं, तो थ्रू यू ओनली वी कैन डू दैट, राइट? So the first and foremost thing what I feel कि before we become a leader, right, we should be thankful for what we are today. We should be thankful to God कि उन्होंने हमें एक existence दी है, right? No matter what is happening around us, right? उन्होंने हमें existence दी है। कई लोग ये कहते हैं कि उसने मेरा मूड खराब कर दिया है, बिकॉज ऑफ हिम आई एम नॉट एबल टू वर्क, बिकॉज ऑफ माई होम सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट एबल टू वर्क, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग माई मूड, मेरे मूड को ये प्रॉब्लम हो गई है। बट वी हैव नो राइट टू स्पॉइल द मूड ऑफ द सोल गॉड हैज गिफ्टेड टू अस। वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दैट, राइट? वी हैव नो राइट कि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, बिकॉज जो सिंगल जिंदगी भगवान ने हमें दी है, हमें only to us, not to my brother, my friend, my husband, my neighbor, my teachers. First जो उसने मुझे गिफ्ट दिया है, क्या मैं उसका रिगार्ड करता हूँ? उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, राइट? सो देयर वी नीड टू लर्न फर्स्ट ग्रेटफुलनेस कि हमें खुद का अगर हम ध्यान नहीं रखते, एंड इफ वी आर नॉट हैविंग द इनफ एनर्जी इन अस, अगर हम खुद की तरफ, इसका मतलब कि हम गॉड का निरादर कर रहे हैं कि उसने हमें एक गिफ्ट दिया है, जिंदगी दी है, राइट? सो फर्स्ट द सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस बिफोर बिकमिंग अ लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, जो लोग अपने, चाहे वो किसी भी एज के हों, राइट, 60 years के हों, 70 years के हों, 30-40 years के हों, those people who have high regard for their parents, राइट, उनको भी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। If you could be a principal of one school, you can be a principal for 10 schools too. You can be head of principals. Why not, right? So progression से हमें कोई नहीं रोक सकता, progressive approach से नहीं कोई रोक सकता। If our trigger is our parents, and the same thing we need to teach our students also. जैसे सर ने भी कहा कि पेरेंट्स का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही नोज कि ही इज सिटिंग बिकॉज ऑफ हिज फादर हेयर, because of his upbringing. I am here because of my upbringing. But अगर हम बच्चे के पेरेंट्स को, हम खुद भी तो एक पेरेंट ही है ना, राइट? वी कैन ऑल्सो प्ले द सेम रोल। सो हमें ग्रेटफुलनेस टूवर्ड्स द पेरेंट्स ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मम्मी पापा ने हमें यहाँ तक ले आए, प्रिंसिपल की पोजीशन तक। इफ यू विल हैव द ट्रिगर, if they are here, if they are not here in this world, but you want to showcase them कि मैं आज भी, I am performing so well in my career, irrespective, I am always the daughter of my parent, even चाहे मैं 50 years की हूँ, 60 years की हूँ, hardly matters to us, right? The second trigger required is my parents. And same we need to teach to our students. I loved कि जब यहाँ पे parents की बात हो रही है, because the student must know that the biggest trigger, जो सबसे बड़ा ट्रिगर उसके अंदर पैदा हो सकता है, वो एक पेरेंट्स के लव, रिस्पेक्ट, या उनके लिए हमें जिंदगी में कुछ करना है तो तब पैदा हो सकता है। और किसी से मैंने बड़ी कार लेनी है, बड़ी बड़ा घर बनाना है, उससे नहीं पैदा हो सकता। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई पापा, फॉर माई मदर, उससे पैदा हो सकता है, पर उनमें पैदा करने से पहले हमने अपने में पैदा कर दिया। And then the gratefulness towards the job, right? हम करोड़ों के कैंपस यूज करते हैं, just to improve ourselves, और हमें सैलरी भी मिलती है,
right? So this should be our approach when we are working. Even for a student, we have to communicate the same thing, that you are using a campus worth crores and crores of rupees, and आप तब भी अपनी एक जॉब खुद नहीं लगवा सकते, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड, राइट? यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू यूज इन अ वेरी मिनिमल अमाउंट. पीपल हैव मनी. अभी सर कह रहे थे कि इट्स ऑल एब्सोल्युटली फ्री. You know, I don't agree to such things sometimes. It should be case to case basis. वाकई बच्चे, टीचर किसके लिए हैं, प्रिंसिपल किसके लिए, they should judge that the student should pay or the student should not pay. Otherwise, the money people have needs the right direction, right? The institutes needs good arms. Even the schools, even the universities, right? There could be lot of paid courses, excellent courses which can improve them. वो convincing हम में से आनी चाहिए. So the next part is कि for principals, for teachers, again it is a leadership summit. So I have identified 3 major things to be an excellent leader, right? One, that we need to be such a person who can convert a negative situation into a positive situation every time. Normally teachers की, जब पुलिस की क्या इमेज बनी है कि he or she is a police officer, लोग उनसे डरने लग जाते हैं. बट इमेज क्या होनी चाहिए? पीस ऑफिसर्स, राइट? देख के आराम सा आ जाता है, राइट? सो दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, दैट वी शुड बी द पीपल. When a student, a teacher, or somebody comes to us, we should be able to convert the negative thing in a positive thing. Even at home, we need to practice the same. Then we need to be visionary. You know, my example is a visionary example. I seriously believe कि Prime Minister टांगरा आ सकते हैं, ठीक है? I seriously believe कि मैं Prime Minister के पास जा सकती हूँ. I seriously believe that I could be in the top, colleges in India. I could speak at Harvard, right? So we need to be. मैं इतने छोटे से गांव में बैठ के I had a vision कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है. मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि whatsoever I wanted to achieve, I have already done it, and now I just have to work. अब आराम से बैठ के मैंने काम ही करना है, because अब मोर देन प्राइम मिनिस्टर मैं किसको मिल लूंगी, मोर देन आईफोन में क्या ले लूंगी. आई कैन वेयर अ न्यू ड्रेस एवरी डे, ठीक है? तो उससे ऊपर मैंने क्या कर लेना है, राइट? सो नाउ इज द टाइम ओनली टू वर्क. इफ सच पीपल फ्रॉम very small villages can do something in their life, then why can't our kids, right? So we need to set up, we need to motivate them कि हम विजनरी होंगे तो टीचर्स भी विजनरी, स्टूडेंट्स भी विजनरी होंगे, राइट? सो एज अ लीडर वी नीड टू हैव बिगर विजन. और समटाइम्स वी आर अ प्रिंसिपल, वी मे नॉट हैव अ पर्सनल बिगर विजन, बट वी कैन हैव अ बिग विजन फॉर द स्टूडेंट वी आर टीचिंग, राइट? एक ओलंपियन का जरूरी नहीं कि कोच भी ओलंपियन हो, right? But you all have a capability. You can produce, thousands of Olympians and the best of the people. So you can complete your vision in them also. And the last is decision making. हम घर पे ही decision नहीं ले पाते कि today I will wear the black or the white, right? I will eat paratha or I will eat bread, right? तो डिसीजन मेकिंग भी हमारे घर से ही प्रैक्टिस हो रही है. हम छोटे छोटे डिसीजन ही नहीं ले पाते, तो बड़े डिसीजन कैसे लेंगे? व्हाट टू डू फॉर अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, और व्हाट टू डू फॉर इन ए डेली रूटीन. जब हम बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं तो वहां पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ओनली बिकॉज कि हम छोटे डिसीजन ही क्विक नहीं ले रहे, छोटे डिसीजंस में ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे. वहां पे मैं ये आपको नहीं बता रही, मैं आपके बच्चों को मैसेज भेज रही हूँ, राइट? दे कांट डिसाइड कि मैं 8 बजे उठूं कि मैं 7 बजे उठूं, राइट? सो वी नीड टू मेक देम लर्न. ऐसे बच्चे
हमें चाहिए schools में who are quick decision makers, who can convert the negative situation into positive, right? Every negative situation into positive. रोंदो बच्चे हमें नहीं बनाने. It's like कि in the toughest of the toughest time, or they could help the smallest of the smallest, in the smallest thing, छोटी से छोटी चीज और आम से आम बंदे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले बच्चे हों. हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट वाले ही बच्चे हों. मैंने MBA कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी से, एंड देन आई वाज द टॉपर ऑफ माय यूनिवर्सिटी. आई couldn't even pay my fee on time. I paid my fee after 4-5 months. Right? I was a topper. I couldn't get the DMC even on time. मुझे अपनी जॉब के लिए भी DMC चाहिए, वो भी नहीं मैं कर सकी. But hardly matters. Even if student do not have resources, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका पॉजिटिव माइंडसेट है, वो तब भी कहीं पहुंच जाता है. और आपके पास जो बच्चे पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो अच्छे घरों के हों. राइट? सो समाज में बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं कि वी कैन अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आई हैव अ प्रोजेक्ट टेक स्कूल ऑन व्हील्स. राइट? टेक स्कूल ऑन व्हील्स में जो मेरी बस आती है रोज, उसको मैं स्लम एरिया में भेजती हूँ. एंड स्लम एरिया में मैंने 1.5 साल भेजा. उसमें से मैंने 5 बच्चों को पिक किया. 5 बच्चों को अब मैं अपने कैंपस में ट्रेन कर रही हूँ. So my vision is to bring a software engineer from the slum. I want to prove कि software engineer from the slum भी हो सकते हैं. Right? So हम इस तरह का, अगर बिना टीचर बिना प्रिंसिपल हुए, मैं ये सोच रही हूँ कि एक स्लम का बच्चे जो हैं उनको कोडिंग हमने सिखा देनी है, और उनको एग्जाम्पल, अभी बहुत देर से प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी रेडी नहीं हुए वो प्रॉपर. ठीक है? सो देयर विल बी अ डे व्हेन आई विल बी पेइंग देम 30,000 40,000 इन हैंड, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द स्लम्स. आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कि अगर हम बहुत मेहनत करें तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो आई कुड इजिली सी कि ऐसा हो सकता है. दे कैन इवन कोड. We, the such programs, जैसे कि universities, they are trying to connect with the schools. In my village, what we have done, we have generated white collar jobs for the for the rural India, we can say, right? White collar jobs in the villages. White collar jobs mean walking distance पे बच्चा 50,000 सैलरी ले रहा है. Right? This we have proved कि 130 बच्चे रोज आ रहे हैं, and out of them majority are doing, all of them almost are doing white collar jobs. Right? So, उससे हमें ये पता चलता है कि हमें बच्चों का जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योरियल ज्यादा बनाने की जरूरत है. राइट? इट्स अ बिग गैप कि जहां पे, जैसे सर कह रहे थे कि बच्चा मेडिकल कर रहा है और बाद में वो होटल मैनेजमेंट में जा रहा है. ठीक है? इट्स अ बिग गैप. मैंने भी नॉन मेडिकल किया है, बाद में मैंने मैनेजमेंट की है. राइट? आई हैव सीन, अभी कल ही मुझे आई मेट समबडी, पढ़ाई हमने होटल मैनेजमेंट की है, बट हम किसी मेडिकल उसमें नर्स लगे हुए हैं. राइट? कि वहां, सो वी नीड टू गिव देम अ राइट करियर पाथ राइट फ्रॉम द स्कूल. ऐसे मौके जब हमें मिलते हैं तो वी नीड टू, हमें पूरा बहुत जरूरत है कि हम कनेक्ट करें, हम एफर्ट करें, हम इनिशिएटिव लें. हम सुन के ना जाएं, हम उनमें से हमारा नाम आए कि ये जो 5 साल पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने ये सुना था, देन आई इम्प्लीमेंटेड दिस इन माय स्कूल, एंड दीज आर द 5 किड्स आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years, विच जो भी हमने ऐसे सेम कॉन्फ्रेंस 3 years पहले स्टडी की, तो दे आर द सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ देम. दे हैव डन मिनी PhD फ्रॉम CT. राइट? सो इंस्टीट्यूट हार्डली मैटर्स, ये भी मैं आपको बताऊं. सो आई स्टडीड फ्रॉम LPU, बट I was the founder student. तो कैसा बच्चा मैं बन गई? मैं ऐसा बच्चा बन गई कि मैं TEDx पे जाके बता रही हूँ कि where I have studied. Right? मैं IIT IIM में जाके बता रही हूँ कि where I have studied. So it doesn't matter कि आप कहाँ से पढ़े हैं, but हमने बच्चों के दिमाग में ये नहीं डालना जो स्कूल में, कॉलेजेस में चलता है कि यार you focus on IIT.
उनके दिमाग में ये डालना है कि वी हैव गिवन यू द राइट करियर पाथ एंड यू क्रिएट अ स्टोरी टू स्पीक एट IIT, your destination or your ways from CT University or any other, जो भी आपके माइंड में है. हम भी इस लोकलाइज्ड पढ़ के ही वी हैव अचीव द बेस्ट पॉसिबल. जो हमारे पेरेंट्स ने बेस्ट सोचा कि यहां तक हम पहुंचे, हम वहां तक पहुंच गए, राइट. सो हमने ऐसे बच्चे नहीं बनाने कि जो IITs में पढ़ रहे हैं, MITs में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं और हम उनको कह रहे कि तुम सक्सेसफुल हो. हमने ऐसे बच्चे बनाने हैं कि जिनको राइट करियर पाथ दिया है हमने, उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज बन गई है मनदीप कौर टांगरा की तरह, एंड दे आर स्पीकिंग एट हार्वर्ड. दे आर सेइंग कि हम DAV स्कूल से पढ़े हैं, CT इंस्टीट्यूट से, फिर हम फर्दर पढ़े हैं और आज हमारी इतनी सक्सेसफुल स्टोरी है कि हम हार्वर्ड में आके बोल रहे हैं, राइट. फिर हमारे इंस्टीट्यूट्स का, हमारे स्कूल्स का, हमारा नाम रोशन होगा और हमारी ये एसोसिएशन जिसके कारण हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी. ठीक है. वी नीड दो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टोरी सुनाए हार्वर्ड में जाके, स्टोरी सुनाए बड़ी बड़ी स्टेजेस में. एंड इंडिया नीड्स सिंसियर serious students to work now. Enough of casualties in schools, in colleges. वो जो पिछला जमाना था ना स्ट्रिक्टनेस वाला ही, ठीक है. I don't say कि स्ट्रिक्टनेस करनी है, but discipline matters a lot. It really matters. I am here because of the discipline I have followed. I have consistently gone to the college. I have not ever missed a single lecture in my university. I have 100% attendance. I used to come from 65 kilometers every day to the university for 5 consecutive years. And at the end, consistency pays you. Right? It's not कि अगर मैं वो discipline ना follow करती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती. So कई बार लोगों को खुद नहीं पता होता कि हम उनका भला कर रहे हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा कि कितना भला होगा. बच्चे को अगर हम कहेंगे तुमने कोई छुट्टी करनी थी, उसको भी नहीं पता कि कितना भला होगा, राइट. सो हम बुरे बन के ही भला करते जाएं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट. बिकॉज अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं इंडिया की काया पलट सकते, अच्छी एजुकेशन ही पलट सकती है, राइट. अगर मुझे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन और हेल्थ, तो I'll always choose education, always, right. It's very clear from my own experience कि education ही सबसे ज्यादा जो है कि वो important चीज है. So संस्कार is more important than the सरकार, right. So हम हमेशा कहते रहते हैं ये पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी नहीं है, बच्चों के लिए ये नहीं है, स्कूल कुछ नहीं करते, सरकार कुछ नहीं करती, right. But at the end इवन अगर सरकार भी पढ़ा दे किसी को और वो अच्छा IAS ऑफिसर बन जाए, ठीक है, उसके संस्कार ही नहीं अच्छे होंगे, ठीक है, उसने जान निकाली हुई है अपने लोकल बंधु की, तो उसको क्या करेंगे हम. देयर इज नो फन ऑफ हैविंग सरकार और एनी अदर हेल्प, ठीक है, जिससे अच्छे सिटीजन पैदा हो सकते हैं. ओनली द गुड एजुकेशन, the moral science we teach the students in the school, right, and good sanskar can take people to heights. Otherwise there is no other way. नाम जो रोशन होना है वो 10 साल हो सकता है, बच्चा IAS बन जाए तो हो जाए, ठीक है, बट अगर उसमें वो संस्कार नहीं है, वो एक दिन उसका डाउनफॉल आना ही आना है. So we need schools who inculcate the sanskar part, who has moral science as the subject, right, who are totally focusing on making them a good person in their life, a nice person in their life. के लोग के वाह मैंने तुम्हारे पास बैठना है, मैंने तुमसे ही बात करनी है, तुमसे बिजनेस करना है, मुझे तुम पे इंटरेस्ट है पूरा, राइट. आई लीस्ट डू माई मार्केटिंग, लीस्ट हम अपनी वेंचर की बहुत कम मार्केटिंग करते हैं. मैं कहती हूँ कि मैंने इतना अच्छा इंसान बनना है कि लोग को विश्वास हो कि अगर मनदीप को we will pay from Canada, she will do the work, right. तो हमें वो चीज जो है, तो उससे क्या होगा, हमारे बच्चों को
कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं उनके वेंचर के लिए, उनके किरदार पे ट्रस्ट हो जाएगा, लोग उनको करोड़ों का काम दे देंगे, वो करोड़पति ऐसे ही बन जाएंगे, राइट? सो इट्स वेरी स्मॉल लॉजिकल थिंग्स. वी नीड टू teach our kids कि आप social entrepreneurs बने. I could be an entrepreneur in Chandigarh, I could be an entrepreneur in Bangalore, but I chose my small village and I want to bring change there. We need to showcase them such examples. How we need, कैसे हमने काम करना है कि हम ecosystem को build up करें और नाल लेके चले, साथ लेके चले, right? For example, जैसे मेरा village है, तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट कि विलेज में हम 130 लोगों को जॉब दे रहे हैं. जो लोग मेरे पापा की आटा चक्की से आटा खरीद के उनको प्रॉफिट करवा के मेरी एजुकेशन का पे करते रहे हैं, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैंने उनके बच्चों को जॉब दी है. आज अगर मैं 25-30 लाख सैलरी दे रही हूँ तो वो उनको वापस जा रही है. पहले वो मेरी फीसें भरते रहे, अब मैं उनके बच्चों को जॉब दे रही हूँ. ठीक है, दिस इज बिल्डिंग इकोसिस्टम. आई एम नॉट बाइंग मिल्क कि हम पैकेट वाला मिल्क खरीद रहे हैं, हम लोगों के घरों से मिल्क ले रहे हैं, राइट? हमारे वहां पे लोग पीजी में रह रहे हैं. ठीक है, सो हमने बच्चों को ये भी साथ में सिखाना है. वी आर गोइंग टू टीच देम कि आप हार्वर्ड सोचो, आप MIT सोचो, बट आप ये भी तो बताएं ना कि एक कैटेगरी ये भी होती है. हर चीज कैट नहीं होती, हर चीज मैट नहीं होती. ये सीटी भी कोई चीज है, ये भी यहाँ पे भी कोई प्रोग्राम हम बना रहे हैं, या हमारा स्कूल का भी, हमारा भी कोई अपना एक द वे ऑफ टीचिंग है जिससे आप उतना ही राइज कर सकते हो जितना एक IIM वाला बंदा राइज कर सकता है, जितने तो हमारा लोकल प्रोडक्ट भी एंड प्रोडक्ट बन सकता है जो हम बनाना चाहते हैं. So I think that is more than enough what I have shared with all of you. So I am also I have started with a campaign in Punjab which is reverse migration. Reverse migration is something which I have started from a very small village where I feel कि हमारे जो लोग जब बाहर चले जाते हैं, ठीक है, वो 10 साल 20 साल 25 साल अपने 25 साल लगा देते हैं एक 10 करोड़ का घर खरीदने के लिए जो उनके पास ऑलरेडी यहाँ पे है. The amount of energy they are having in them, they are totally wasting energy in buying materialistic things in other countries which they can use that energy in their own country. क्योंकि एसेट यहाँ पे हमारे पास पहले ही है, घर हमारे पास पहले ही है, and then they can think of कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर सकता हूँ. अगर वो बच्चा यहाँ पे भी 10-12 साल लगा ले तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल है, right? But I am not against when students are going to study abroad, right? I am not against when students work there. I am only against कि जब वो अपना सारा कुछ बेच के अपने पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़ के तो तब चले जाते हैं, right? So you need to educate them right कि आप बाहर जाए बट आप पढ़ने जाएं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो वो अपने कंट्री में करें. आप पढ़ के वो एनर्जी यहाँ पे लेके आए, आप वहां पे जॉब करें, आप स्पेंड यहाँ पे करें, आप इन्वेस्ट यहाँ पे करें, आप बिजनेस यहाँ पे खोलें, एंड दिस इज योर होम टाउन, नॉट दैट इज योर होम टाउन, राइट? सो हमारा कल्चरल बहुत ज्यादा डिफरेंस है. सो वी नीड टू वो जो संस्कार पोर्शन मिस हो जा रहा है, देयर वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर स्कूल्स. वो स्कूल से ही होना है, यहाँ पे आके तो कुछ नहीं हम चेंज कर सकते, राइट? अगर जिस तरह आज आपकी डिस्कशन हो रही है, ऐसे आप 100 बच्चे भी सपोज डिफरेंट स्कूल से, दे आर कनेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी, राइट? आई एम 101% श्योर कि वो ऐसे, क्योंकि उनकी 8, 9, 10 से वैसी सोच बनती जाएगी. दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने एंटरप्रेन्योर ही बनना है, या मैंने जो भी डिफरेंट प्रोग्राम, मैंने ये टेक्नोलॉजी में जाना है, मैंने ऐप डेवलपमेंट ही करनी है, ठीक है? तो उनको जो राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि अगले 8 साल में मैंने कहाँ पहुंचना है, दे कैन इजिली गेट द डायरेक्शन इफ वी सेट अप एटलीस्ट. अगर हम सोचे कि हम ये ऐसे प्रोग्राम करके 100 एम्बेसडर भी बना दें, राइट? दिस इज लाइक DAV प्लस CT का 1 एम्बेसडर, DAV प्लस CT का 2 एम्बेसडर, कि हमने इतने बच्चे 100 एम्बेसडर्स भी हमने पैदा कर दिए कि ये 100 एम्बेसडर्स को हमने ग्रूम किया है
कि आपने यहीं पे कुछ करना है, इवन आपने पढ़ने जाना है, पढ़ के आके फिर आपने क्या करना है, ठीक है, तो वो अपने आप वो चीज स्प्रेड होती जाएगी। एक पॉजिटिव जो एड ऑन है, रिवर्स माइग्रेशन कैंपेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो, इट इज सक्सेसफुल। और वहां पे भी इन कनाडा और यूएस सबके रिश्तेदार रहते हैं, ठीक है, देयर इज नथिंग स्पेशल दे आर गेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे चीजें बेटर है। आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, सर हैज ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, दुनिया ने ट्रेवल किया हुआ है, राइट। सो वो जो हमने यहाँ पे अजय बंगा पैदा किया है इंडिया में, राइट, यहाँ से उन्होंने अपनी मास्टर्स की है, जो वर्ल्ड बैंक के सीईओ है, ठीक है। हमने यहाँ से इंदिरा नोई पैदा की है अपने इंडिया से, जो पूरी पेप्सी को संभालते हैं, ठीक है, वो भी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े होंगे। वो देख देख के आई नेवर डाउटेड ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ यू नो आवर कंट्री ऑल्सो। वी कैन डू द सेम थिंग्स व्हाट कनाडा इज डूइंग, व्हाट यूएस इज डूइंग, बट हमारे में जो एनर्जी है वहां पे हम लैग कर रहे हैं। यू नो, हम जो इकट्ठे मिलके जो काम कर सकते हैं वहां पे हम लैग कर रहे हैं। हमने जो एफर्ट लगाना है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, ठीक है, वी नीड टू कन्विंस, वी नीड टू वर्क क्लोजली, वी नीड टू गिव आवर बेस्ट कि नहीं, हमने इंडिया के लिए कुछ करना है, हमने पंजाब के लिए कुछ करना है, हमने जलंधर के लिए कुछ करना है, हमने लुधियाना के लिए कुछ करना है। जब हमारी जो सोच है वो लोकल हो जाएगी कि लुधियाना से ही हमने पैदा करने हैं, कि जो जिनका दुनिया में नाम है, और वो बच्चे हमारे स्कूल के ही होंगे, ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी के ही होंगे, और वो यहीं पे दिखेंगे लोगों को कि यहीं पे बैठे हैं। जैसे सर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कितने सक्सेसफुल वेंचर्स हैं। कैपिटल एरिया बैंक है जो जलंधर में, राइट, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट, दे हैव मोर देन 160 ब्रांचेस, the largest number in Punjab, more than HDFC, more than ICICI, and they are living with their parents in Jalandhar. They have their headquarter in Jalandhar. ठीक है, सो लोगों ने बहुत तरक्की की है यहाँ पे भी रह के। हमने वो टीचर्स, वो स्कूल्स नहीं बनना कि तुम फटाफट बैंगलोर चले जाओ पढ़ने, तुम फटाफट, आप उनको ये कहें कि आपका टाइम सेव होगा, आप फटाफट लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, कहीं पे भी पढ़ लो, पढ़ना आप नहीं है, ठीक है, वो मोटिवेशन हमारे से उनको जानिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनीथिंग फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क।